السلام علیکم. آج ہم لوگوں کا پلان تو کچھ اور تھا, کوئی اور ریکارڈنگ کرنی تھی. ایک دم سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ آج ہے کرافٹ فیسٹیول. اور یہ جو ہے نوماد آرٹ گیلری کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ جو ہیں نگین حیات جو ہیں, یہ ان کے اندر ہے. یہ ان کی طرف سے ارینج کیا گیا ہے سرینا ہوٹل میں. تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ہم اس کو آپ کو بھی دکھائیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. تو یہ سارا چونکہ ہینڈ میڈ ہے اور سارا ان لوگوں نے ہی بنایا ہے. تو نگین حیات صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان کو آئیڈیاز بھی دیتی ہیں, ان کو کلرز وغیرہ سب چیزیں بھی بتاتے ہیں, اور ان سے کام کروا کے پھر وہ آگے پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ بھی دیکھیے ہمارے ساتھ آ کے کہ کس طرح سے انہوں نے ارینج کیا ہے. تو آئیے یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ آپ نے بنایا؟ جی ہمارے گاؤں میں بناتی ہے. یہ گروپ میں بناتے ہیں. یہ کس چیز سے بنایا؟ دھاگے سے. اچھا, دھاگے سے. سارا دھاگا ہے یہ؟ اوکے. یہ بھی سارا ہینڈ میڈ ہے؟ جی ساری چیزیں ہاتھ کی بنی ہوئی ہے نا. یہ کیا؟ یہ رلی ہے. رلی ہے. سامی رلی. یہ کوشن کور ہے. جی یہ بھی ویسا ہی کام ہے. یہ اور یہ ایک جیسا کام ہے. اچھا, یہ کوشن کور میں ہے اور یہ اس میں ہے. ہاں یہ بیڈ شیٹ ہے, وہ والی بھی, یہ بھی. تو یہ کیسے ہاتھ سے بنایا؟ یہ بھی بنتی ہے نا, دھاگے سے بنتی ہے. یہ بھی. شکریہ جی, بہت شکریہ. یہ کیا ہے, سلک ہے؟ ہاں سلک ہے. یہ سلک ہے لیکن اسے بلاک سے بنایا ہوا ہے, اجرک والے. لیکن یہ اوریجنل سلک ہے؟ جی یہ سلک ہے اور یہ کاٹن ہے. یہ دیکھیں, ہاں. پھر اس پہ کام کیا ہے ہم نے. یہ دیکھ. اچھا 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 اچھا, بہت شکریہ آپ کا. اچھا, یہ سب انہوں نے بیڈ شیٹس وغیرہ ہیں. یہ انہوں نے شرٹس. یہ بہت ہی خوبصورت کام ہے. یہ ویلویٹ کے اوپر انہوں نے بہت خوبصورت بنایا ہے. چلیے اب آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اچھا, یہ تو وہ ہیں. ارے واہ, یہاں تو شاپنگ بڑی اچھی ہو سکتی ہے. یہ سارے دوپٹے ہیں, یہ شلواریں ہیں, اور یہ رضائی ٹائپ چیز. اچھا, یہ جارجٹ پر ہے. یہ سارا اجرک ہے, سلک پہ اور کاٹن پہ اور لان پہ. یہ ہے سب سے زیادہ کمال کی چیز. یہ سب سے زیادہ مزے کی چیز ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو بچے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اس کے پیسز, جتنے پیسز ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے ڈیزائن بناتے ہیں. اور یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے, بہت مشکل. اور اس کی پرائس کیا ہے, قیمت کیا ہے اس کی؟ 18,000 روپے. اور بالکل صحیح ہے, 18,000 جتنی محنت ہے اس کے اوپر. اب یہ نہیں پتہ بنانے والوں کو کیا ملتا ہے اس کا, لیکن بہرحال. اچھا, یہ بھی سارے ہاتھ کی ہی چیزیں ہیں. یہ ساری جیولری ہے جو اوریجنل پتھر ہیں, اس کا سارا زیور بنایا ہوا ہے انہوں نے. اور یہ ذرا اس کی بارے میں بتائیں گے مجھے آپ؟ بیسکلی دس از آل ہینڈ میڈ. ہینڈ میڈ یا ہینڈ میڈ ہے, اور میں اپنی ڈیزائنس جو ہے نا وہ حالات سے کسٹمائز کرتی ہوں. اچھا, وہاں کے آرٹسنس پینٹ کرتے ہیں اینڈ آئی ڈیزائن دیم. سو یہ حالات کی ٹریڈیشنل کاشی کاری ہے جس کو ہمیں کنٹمپریری ٹچ دیتے ہیں بیسکلی ٹریڈیشنل ڈیزائنس. یہ آپ بنواتی ہیں؟ جی میں خود بنواتی ہوں. مطلب میری آرٹسنس کی ٹیم ہے, وہ پینٹ کرتی ہے, اور یہ میرے ورک شاپ میں سندھ میں ہی بنتی ہے, اینڈ آئی جسٹ ڈیزائن دیم.
کہاں پر؟ یہ حالہ سے آتی ہے. حالات سے. اچھا اچھا, بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ان میں کیا خاص بات ہے؟ سوری, یہ انڈور پلانٹس ہیں, دیر آل ریئل, اور یہ ہینڈ پینٹڈ پاٹس ہیں سارے, دیر آل ہینڈ پینٹڈ. اوکے, ہینڈ پینٹڈ. Yeah. یہ اچھا اچھا اچھا. اور یہ 100% سوئے پلس بیس ویکس ہے اور پریمیم آئلس ہیں. These are 100% premium essential oils, and it's soy plus beeswax, and they're all hand painted pots and plates as well. تھینک یو ویری مچ. Thank you. Please follow our page. It's on Instagram. اوکے. Yeah. Orne. It's called Orne. مختلف میپس کی شالز ہیں. یہ ساری ہینڈ میڈ شالز ہیں. یہ کتنے مننے سے کیوٹ لگ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے. چلیں آگے دیکھتے ہیں. ہے تو یہ چھوٹا سا مختصر سا, لیکن یہ احمد حبیب صاحب کی پینٹنگ بھی رکھی ہے یہاں, ایک انتہائی خوبصورت. یہ بھی احمد حبیب صاحب کی بہت خوبصورت پینٹنگ. یہ جتنی لوکل ہماری چیزیں ہیں جو کہ اب ناپید ہو چکی ہیں, وہ سب انہوں نے رکھی ہیں. یہ پتہ نہیں اس سے کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس سے؟ اچھا اچھا اچھا, چارہ کاٹنے کا. لالٹین ویسے اب وقت آ گیا ہے کہ لالٹین خرید لینی چاہیے, جو لائٹ کے حالات ہو گئے, لالٹینیں رکھنی چاہیے گھر میں. تم یہ باقی کور کر لو, میں ان سے بات کرتی ہوں. آؤ پہلے وہ دیکھتے ہیں. یہ تھا نہیں وہ تو ہے نا پلانٹ پہ, وہی سر. انہی فیض سے بازار عقل روشن ہے. اچھا, بہت اچھی اور خوبصورت جو ہیں پینٹنگس بھی, کارڈز بھی. جی ابھی ہم نے آپ کو پورا راؤنڈ لگا کے دکھایا اس پورے ایریے کا, تو اب ہم نے سوچا کہ نگین حیات صاحبہ سے بھی تھوڑی سی بات چیت کر لی جائے اور تھوڑی اور ہمیں معلومات مل جائیں گی اس بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مجھے تھوڑا سا پہلے تو اپنا تعارف کروائیے. میرا نام نگین حیات ہے اور 1984 میں ہم نے نومیڈ کلچرل سینٹر اسٹارٹ کیا تھا. اچھا, آئی ایم فاؤنڈر ڈائریکٹر آف نومیڈ گیلری, اینڈ آئی ایم اے فلم میکر اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ,
एंड क्राफ्ट्स एक्टिविस्ट. तो क्राफ्ट्स में और कल्चर में हमारी एक्टिविज्म भी रहती है, विच बेसिकली मीन्स कि हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में काम करते हैं ख़वातीन के लिए ठीक. और ख़वातीन के साथ कम्युनिटीज़ के लिए. सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि उसमें जो इन्फ्लुएंस होता है, अगर एक खातून स्किल्ड हो और उसके स्किल को इन्हेंस किया जाए और गाइडेंस मिले, वेदर आर्टिस्ट हो या क्राफ्ट पर्सन हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनहेरिटेड स्किल तो होती है, होम बेस्ड वर्कर्स भी हैं, लेकिन साथ साथ एज मदर्स, एज हाउस वाइफ्स फील्ड में काम करते हैं जी. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब एक काम कर रहे हैं वो स्किल, कभी कभी उनके लिए एक रिलीज भी होती है और उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होता है. लेकिन जब तक आप गाइड ना करो कि वो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके ठीक. अप टू द मार्केट लेवल ले आएँ, सो दैट उनकी एक क्रिएट हो जाए स्पेस ठीक है. और कंपेटिटिव स्पेस हो जाए, उसमें प्राइसिंग आ जाता है, क्वालिटी कंट्रोल आ जाता है, डिज़ाइनिंग है एंड देन मार्केटिंग. सो वो पूरा प्रोसेस हम करते हैं, वो पूरा हम करते हैं और वो हम चारों प्रोविंसेस में अच्छा. आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड अप किया है. ठीक अब है. तो 42 इयर्स हो गए, 40 साल से ऊपर हो गया. लेकिन वो ये है कि ग्रास रूट से लेके एजुकेटेड लड़कियां जिनको अपॉर्चुनिटीज़ भी थी. मेरे लिए एंटरप्रेन्योर्स भी बहुत ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट है. अगर वो स्किल सीखती हैं या पढ़ाई करती हैं तो उनको हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई सिर्फ क्योंकि एक थोड़ा सा जब फंडिंग आती रही है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, और क्योंकि हम काफ़ी वॉलंटरी काम करते हैं, तो वो ठीक. कंपैरिजन अगर आप करें तो इसका फंडिंग से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए कि जी फंडिंग आ रही है और ठीक. आप दे दें NGO को. आई हैव नथिंग अगेंस्ट बीइंग एन NGO, लेकिन काम का और उनका जी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी पॉलिसी क्या है. बिल्कुल. तो होता ये है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे दे दें और कि जी ये चीज़ बना दें, कभी उनमें डिज़ाइन एलिमेंट या उनमें गाइडेंस नहीं होती, नहीं होती. सही. और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं उनको. अब आपका फ़ंड ख़त्म हो गया, आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, फिर क्या हुआ? तो हमारी ये कि कंटिन्यूटी है. कुछ लोगों के साथ तो 40 साल से, अच्छा. उनके बच्चों के साथ. अच्छा. अब तो आई फील कि ये इम्पोर्टेंट है और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वहाँ एफर्ट करनी चाहिए. तो ये अगर कोई सीखना चाहता है तो बच्चियाँ या कोई, तो वो भी आपके पास है कि आप सिखाते भी हैं? हाँ जी, ओवर द ईयर्स तो हम बहुत ट्रेनिंग्स करवाते रहे. अच्छा. और लेकिन इंडिविजुअल बच्चों का मैं कह नहीं सकती, लेकिन मुझे अप्रोच ज़रूर करते हैं. अच्छा. अगर कोई आर्ट स्कूल से ग्रेजुएट किया हो, उसके अलावा कम्युनिटी की जो जानती हैं हमें, वो कहती है हमारी बच्चियाँ हैं या कोई लेडीज़ को हम इकट्ठा लाना चाहते हैं, तो हम वर्कशॉप्स करा देते हैं. रेजिडेंसीज आर्टिस्ट के लिए कराते हैं. जैसे रिसेंटली हमने कैलाश एरिया के ऊपर काम किया. वो मैंने पहले भी किया हुआ है. आई वाज एज अ प्रोड्यूसर विद PTV, तो वो मैं एक फ्रीलांस काम कर रही थी तब, तो कंसल्टेंसी का काम था. तो वो अच्छा था इसलिए कि आप फिक्स नहीं हो जाते. आई कांट फॉलो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज. आई एम अ वेरी फ्री पर्सन इन द सेंस कि अपनी सोच और अपना काम बहुत ज़रूरी है, एंड योर ओन पर्सपेक्टिव. तो उसमें ये है कि फिर हमारे पास कोई लोग अगर आते हैं और ग्रुप्स आते हैं, फैकल्टी हों, स्टूडेंट्स हों, कम्युनिटी हो. अब जैसे ये डिमोलिश हुए घर और ये चीज़ें, तो उनमें हमारे कोई बच्चे आर्टिस्ट थे जिनको हमने ट्रेन किया हुआ था. अच्छा. और वो आर्ट टीचर्स भी कोई बन गए, तो वो हमारे पास रोते आए कि हमारे घर डिमोलिश हो गए, तो आप क्या कर सकते हैं. तो जो हम अपने तरीके में कर सकते थे, क्योंकि हुकूमत वक्त तो हम हैं नहीं जो उनको करना चाहिए, इट्स देयर जॉब. लेकिन हम ये कर सकते हैं कि एक फंड रेजर कर लिया, अपने फ्रेंड्स को बुला लिया, उनको इनवाइट किया कि आके इनका काम खरीदें आप, जैसे लाइक अ फंड रेजर. तो वो उनको मिल जाते हैं कि उनके कम से कम 2-3 महीने का खर्चा निकल आता है. लेकिन ये बहुत बड़े स्केल पे होना चाहिए. बिल्कुल. मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट को और गवर्नमेंट को बहुत लार्जर स्केल पे, और कुछ कर भी रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही कि नहीं. आई कैन ओनली फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है. ठीक है. अच्छा, ये बड़ी अहम बात कही है आपने. जैसे इन लोगों को काम करना आता है, मेहनत करते हैं, सब कुछ है. जैसे कराची में जो कच्ची आबादी में लोग रह रहे होते हैं, बड़ा हुनर है उनके पास, वो बड़ा हाथ का काम कर रहे होते हैं. जी जी. लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो काम, उसमें रंग अच्छे नहीं होते, कॉम्बिनेशंस नहीं होते, कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं होती. तो उन्हें काम तो आता है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि किस चीज़ को कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है. बिल्कुल. जो आप बात कह रही हैं यही हमने फॉलो थ्रू किया है. ये बिल्कुल. और सब प्रोविंसेस के लोग आते रहे,
जैसे फॉर इंस्टेंस एक ग्रुप कराची का है या क्वेटा से हैं या GB गिलगित बल्तिस्तान में भी काम किया है, या किसी को ज़रूरत होती है तो कॉल कर देते हैं मुझे कि आप आके ज़रा गाइड कर दें, ठीक, तो हम खुशी खुशी कर लेते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए जी स्किल तो आ गया लेकिन एक पूरा प्रोसेस है जी, इसमें फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए जहां आप टीचर्स को फिर रखें। अब टीचर्स को भी इतना क्वालिफाइड और एस्थेटिक होना चाहिए जो आसान चीज़ जी नहीं है। बिल्कुल, एस्थेटिक होने की अवेयरनेस या आप में पैदाइशी होना जी चाहिए, बिल्कुल, वो तो बिकॉज वो तो आप उनको गाइड कर सको कि हाँ जी ये चीज़ आप बना रहे हैं। सही, तो बहुत से ऐसे स्कूल्स या कॉलेजेस हैं आर्ट के भी जहाँ स्टूडेंट्स जब हमारे पास आते हैं, जब ग्रेजुएट करके बहुत एक्साइटमेंट में अपनी कैनवसेस काम लेके आते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि ये इंस्पिरेशन क्या है आपकी, इज़ इट, क्योंकि स्किल तो आपने सीख लिया। जी, कुछ का ये होता है कि जी फैकल्टी मेंबर का काम में इम्प्रेस थे या हमें नंबर ज़्यादा मिलते थे। तो आइडिया ये है कि हाउ डू यू फाइंड योर ओन स्पेस और हाउ डू यू फाइंड योर ओन स्टोरी। एक नैरेटिव बहुत ज़रूरी है कि आपकी अपनी ज़िंदगी का हो, अपनी ज़िंदगी से जो आपने लिया हो और जो एक्सपीरियंस से लिया हो उसकी रिफ्लेक्शन करना, वेदर आप पेंटिंग के थ्रू करते हो, वेदर आप फिल्म के थ्रू करते हो, बिल्कुल, और वेदर यू डू इट थ्रू अ क्राफ्ट। तो इट्स अमेजिंग, मतलब मेरे लिए तो एक पैशन है और ये पूरी ज़िंदगी गुजार दी है इसमें, और जब तक कर सकी ज़रूर करूँगी। और मेरी टीम्स बहुत अच्छी हैं और पार्टनर्स पूरे मुल्क में हैं जो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड दे आर वेरी ग्रेटफुल, तो हम ज़रा अच्छे कनेक्ट करते हैं। ये जो आपने ये अरेंजमेंट किया है, ये आप हर साल करते हैं? ये सरीना का जो हमारी कोलैबोरेशन है ये बहुत पुरानी है। अच्छा, उनको कभी ज़रूरत मेरी हुई कि उनके ब्लॉग के लिए लिखना कि टूरिज़म पे एक ज़माने अच्छा। में या कुछ प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान में, तो वो गलत रिपोर्टिंग भी हो जाती है इंटरनेशनली कि चिलास में अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो कहते हैं अब शिगर ना जाएं। तो आई फील स्ट्रांगली अबाउट दिस बिकॉज हमें हमारी काउंटर होनी चाहिए रिपोर्ट कि जी वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो जाके पाकिस्तान अब बहुत न्यूज़ में 2 पिछले हफ्तों में आ गया है, क्योंकि यहाँ हमारी ये इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स जो हो रही हैं और सब, लेकिन उससे ये है कि पूरा मुल्क स्टैंड स्टिल पे हो जाता है। इस्लामाबाद आप एक पॉइंट से दूसरे हिल नहीं सकते, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर उससे कोई बेहतरी आती है किसी के लिए तो चलो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये रिकग्नाइज़ करें। और सरीना का ये है कि साल में 3 मरतबा नोमैड और सरीना का एक कोलैबोरेशन है, ठीक, जो क्राफ्ट फेस्टिवल है। उनकी भी जो सोच है कम्युनिटी बेस्ड है और हमारी भी ये है। ठीक, तो कम्युनिटी का कोई भी लेवल हो, इसमें ये सिर्फ नहीं कि इससे पॉवर्टी आपकी हटती है। जब एक अर्निंग होती है, एक औरत जब कमाएगी तो बच्चे भी एजुकेट होंगे और फैमिली को भी बेनिफिट होगा और एक अपनी सेल्फ इस्टीम बढ़ती है। बिल्कुल, आपका फ्रेंकली स्पीकिंग मेजर करना या नापना आपकी डिग्निटी या आपकी रिकग्निशन को पैसे के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ना हो, कोई अपनी फैमिली भी नहीं पूछती। नहीं, बिल्कुल, और जिस दिन एक औरत सक्सेसफुल हो जाती है या इंडिपेंडेंट हो जाती है तो वो एक प्रोफाइल ही बदल जाता है। बिल्कुल, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियां हों लड़के हों कि काम करें और फोकस काम करें, फोकस काम। और उसका रिजल्ट हो जो दूसरों का भी बेनिफिट हो और पाकिस्तान का बेनिफिट हो। ये जो सारा काम आपका, ये जो सारा काम दिखा है, ये कितने हाथों से होता हुआ आपके पास आता वो है? माशाल्लाह ये एक पार्टनर है। अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो कम से कम 50-60 पार्टनर्स हैं जिनको मैं पार्टनर कहती हूँ। आई डोंट लाइक द टर्म वेंडर और ऑल दिस। अच्छा, इनमें ये है कि इनको फीडबैक जिस हद तक हो सके हम देते हैं। ठीक, सो आई हेल्प देम विद देयर गाइडेंस। स्किल आ गई, आइडिया, मैम एक आइडिया आ गया है, अच्छा, तो फिर हम बैठते हैं, हम बातचीत करते ठीक। हैं और मैं कहती हूँ ये ट्राई कर लो या ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो, या पाकिस्तान में इंडिजिनस मटेरियल्स ये हैं उनको ट्राई कर लो, ठीक। उसको मॉडर्नाइज भी कर लो, कंटेम्प्रेरी भी हो जाए, जैसे आर्ट में होता है कि आप मिनिएचर पेंटिंग लेते हैं लेकिन उसकी जो ओवर द इयर्स नैरेटिव चेंज हुआ है तो वो एक फ़र्क चीज़ हो गई। बिल्कुल, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबिलिटी और लेवल की और रिस्पेक्ट हो गई। सो ईच ऑफ देम वर्क विद मी इंडिपेंडेंटली एंड विद माई टीम। और फिर हम प्राइवेटली भी हर संडे को एक एग्जिबिट होता है जो प्राइवेटली हम इनवाइट करते हैं लोगों को। अच्छा, फिर पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के लिए मैं बहुत करती हूँ क्यूरेट शोज़ नोमैड की तरफ से, तो हम उनके साथ कोलैबोरेट करके अभी इंशाल्लाह 15 मई को वन ऑफ आवर टॉप आर्टिस्ट पाकिस्तानी अकरम दोस्त बलोच फ्रॉम बलोचिस्तान, उनका रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। अच्छा, तो वो हमने बुक किया है। अच्छा। उसके लिए हमें स्पॉन्सर चाहिए था। ठीक,
कभी स्पॉन्सर चाहिए होता है और कभी हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं ठीक बाय रिकग्नाइजिंग आवर कंट्रीब्यूशन। तो ये सब तो साथ साथ चल रहा है। अच्छा नगीन हयात साहब है, मैं आखिर में आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ, वो पता नहीं मुझे पूछना चाहिए या नहीं। पूछिए पूछ लो। देन लेट्स सी। ज़रूर वो पूछिए। क्योंकि मैं एक दफ़ा ना थर गई थी, जी तो वहाँ पर जो ख़वातीन काम करती हैं, हाथ का काम था, उन्होंने ये कहा कि जी हमने काम करना छोड़ दिया है। अच्छा जैसे वो रली वगैरह बनाते हैं, वो पीसेस जोड़ के सारा, तो वो उनका कहना ये था कि जी हमसे जो लोग लेकर जाते हैं वो शहर में जाके तो बेच देते हैं, लेकिन हमें सही मजदूरी नहीं मिलती। दैट्स तो वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि जिन लोगों से आप करवाती हैं, क्या जहाँ जब तक आप तक आते हैं या यहाँ तक आया है, सब कुछ हुआ है, तो उनको हैंडसम अमाउंट मिल जाती है इतनी कि मेहनत जितनी उन्होंने की होती है? देखिए आप अगर मुझसे डायरेक्टली जी, पूछते जी। तो मैं अपना पर्सपेक्टिव बिल्कुल, बता अपना- सकती हूँ। बिल्कुल। हमारा बहुत कमर्शियल वो नहीं है ठीक इन है। रिजल्ट। ठीक है, परसेंटेज एक ज़रूर होता है जो उनको पे करना चाहिए, क्योंकि वो बेगर्स नहीं हैं। बिल्कुल। देखिए जब बहुत बड़ी डोनर एजेंसीज आई थी पाकिस्तान में, यूएसएड ले लो या कोई और थे, तो वो आदत डाल दी थी एनजीओज़ को कि बहुत सा पैसा दे दो, फिर फॉलो थ्रू नहीं होता था कि उसमें से 4 व्हील ड्राइव आ रहे हैं जी। या आपकी सैलरीज बहुत बढ़ रही हैं और कम्युनिटी को क्या मिलता है। सो आई एम वेरी एंटी दैट काइंड ऑफ थिंग। मेरी सोच ये होती है कि जो हमें अप्रोच करें, या कोई एनजीओज़ भी हैं उनमें से या और ऑर्गेनाइजेशंस, जो हम उनको गाइडेंस दे रहे हैं इस वक्त, और ये इनमें से कोई भी आप ले लें, आई हैव वर्कड एज अ कंसल्टेंट विद यूएन वुमेन, तो वो बिल्कुल चीज़ फ़र्क थी, क्योंकि काम भी होता था इसी पैशन से, लेकिन मेरी कंसल्टेंसी होती थी, विच ऑब्वियसली इज़ व्हाट आई नीड टू बी पेड फॉर माई वर्क। लेकिन अब वॉलंटरी है सब, तो हम जो करते हैं काम, फॉर इंस्टेंस आप सरीना का पूछ रहे हैं, यहाँ जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, उनको जब हम डिसाइड करते हैं कि इनकी क्वालिटी है इतनी काम की, और बेशक हमने कदम कदम थोड़ी मदद की हो या वो खुद रीच पहुँचे हों, तो फिर हम उनको ये टेबल्स नॉर्मली जो आप देखते हैं मेलों में और होटल्स वगैरह में, 2 दिन के लिए 50-60,000 तो लोग चार्ज करते हैं, तो हम उनको कुछ चार्ज नहीं करते। अच्छा। ये जो भी आप देख रहे हैं टेबल्स, ये हमारा और सरीना की अंडरस्टैंडिंग है, तो ये टेबल्स फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। ठीक है। जब उनकी कोई सेल होती है, और वो भी हम हैंडल करते हैं, अच्छा। सेंट्रल पॉइंट, और जो भी सेल होती है उस पर एक परसेंटेज होता है, और कोई ऐसे हैं जिनका परसेंटेज भी नहीं होता, लेकिन उस चीज़ से मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि एक आदत आपको पड़ जाती है, नथिंग शुड बी फ्री, यू शुड अर्न व्हाट यू आर डूइंग, यू नो। तो हमारे पास जो भी आते हैं, वो एक उनको पता है कि हम एक परसेंटेज थोड़ा सा ऐड ऑन करते हैं, या वो कहते हैं कि हमारा इतना जी इसमें से इतना काट लें, तो मेजर अमाउंट कम अज़ कम 80% तो उनको जाता है। अच्छा जी, हमारे साथ जो है, बिल्कुल। मैं किसी और का नहीं कह सकती। बिल्कुल। जी जी, क्योंकि जो प्राइसेस यहाँ लगी हुई हैं, उससे मुझे वो बात याद आ गई एकदम से, कि हालांकि हमारा पहले कोई प्लान तो था नहीं आपसे बातचीत करने का, अच्छा। लेकिन वो बात करते हुए एकदम से मुझे याद आ गया। आप पूछ सकती हैं, कुछ भी पूछना चाहिए, बिकॉज वी हैव नथिंग दैट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। लेकिन ये है कि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए वर्क करता है। जी बिल्कुल। और ये एक और बात भी है कि फॉर इंस्टेंस अब जैसे ये चीज़ बॉल्स हैं या कोई चीज़ आप देखते हैं, हमारी कोशिश होती है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स ऑर्डर करना चाहें, तो हम अपने कॉलीग्स को ऑर्डर भी दिलवाते हैं कि इतना ऑर्डर आप 20, 40, 50 बनाएं, तो देखिए बेनिफिट हो जाता है। और ये जैसे वो आपके थ्रू जाएगा ऑर्डर, जो भी ऑर्डर हमारे थ्रू, क्योंकि हमने कंट्रोल करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। ठीक। अब बहुतों को हम डायरेक्ट कर देते हैं, जो लोग यहाँ आके बातचीत कर रहे हैं, मेरे किसी पे कोई वो रोका नहीं है, लेकिन जो हमारे थ्रू ऑर्डर करते हैं, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि क्वालिटी कंट्रोल और कलर्स और हर चीज़ मैच करे, बल्कि वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कोशिश तो होती है कि भाई जैसे भी हो। अब ये बैग्स हैं, ये बहुत अच्छी कराची की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हम बहुत देर से काम कर रहे हैं, तो RLCC वो ख़वातीन से काम करवाते हैं, तो उसमें ये न्यूज़पेपर्स के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, लेकिन उसमें भी हम नोट करते हैं कि जी ये बहुत लूज आपने ब्लॉक यूज़ किया है, टाइटर करें, यूँ कलर्स करें। कोई प्रोडक्ट आता है, मैं कहती हूँ चलो इसमें और बनाएं हमारे लिए, सो दैट नेक्स्ट जो फेस्टिवल हो, जिस चीज़ की आपकी ज़्यादा मार्केट है, जो लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, उसको और डेवलप करो। अगर इस साइज़ की चीज़ें चेंज की, तो हम कहते हैं अच्छा ये 12 इंच में भी बनाओ, इसी चीज़ की आप कंटिन्यूटी करो,
so that people get a feel. और उसके साथ एक narrative create करो, एक कहानी बनाओ साथ, ये कैरेक्टर क्या है, उसकी स्टोरी क्या है, many things like that. हाँ. अच्छा ये जो है कौन सा? जो मैंने लिया, मुझे इसके बारे में पूछना था, ये क्या किस तरह से बना हुआ है ये? मतलब ये क्या चीज़? ये जी स्टफ टॉयज हैं और इसमें हाँ जी, और ये निटिंग और क्रोशिया भी करते हैं ये ख़वातीन. सो ये निटिंग और क्रोशिया में आता है और ये डिफरेंट कैरेक्टर्स जो बच्चे एंजॉय करते हैं कार्टून्स में वो बनते हैं. हाँ मुझे ये था कि ये बनाया कैसे है, नेटिंग है या क्रोशिया में और निटिंग दोनों में है. ठीक है. और ऊपर ऐड ऑन किया है, वैल्यू एडेड होता है जी, डिफरेंट है बिल्कुल. यस, इसीलिए मैंने को टाइट किया हुआ है. या सो दिस इज क्रोशिया, दिस इज नॉट निटिंग. कुछ स्टिचिंग में आ जाते हैं, क्रॉस स्टिच भी डाल देते हैं तो मिक्स हो जाता है. ठीक है. अच्छा ये बताएं, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इसमें अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको क्या करते हैं आप लोग? देखिए वो अलग रखते हैं? नहीं, मेरे लिए हैंडमेड चीज़ जो है उसमें कुछ एक टांका ना भी हो तो वो डिफेक्ट नहीं है. दैट्स नॉट अ डिफेक्ट, दैट्स अ क्रिएटिव पीस ऑफ आर्ट. पेंटिंग्स आप देखते हैं तो वो तो कोई भी लेक्चर दे सकता है कि जी ये इतनी पेंटिंग में ये एक ब्रश स्ट्रोक ऐसा क्यों है, बट दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस. वो जिस तरह आर्टिस्ट ने किया है वैसे आएगा रिजल्ट. तो हाथ की बनी हुई चीज़ को आई फील थोड़ा सा अगर कोई जो आपको जो फॉल्ट थोड़ी आपको लग सकती है वो फॉल्ट नहीं होती, वो चार्म होता है. हम मशीनी चीज़ों के आदी हो चुके हैं ना, तो इसलिए वो देख के फिर वो. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक मैं कहना चाहती हूँ, एंड आई होप कि यंगर जनरेशन के लिए भी और अपने लिए भी, कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड और इनामर्ड हो गए हैं ओवर द डेकेड्स विद इम्पोर्टेड स्टफ. हर चीज़ इम्पोर्टेड. सोशल मीडिया जब से आया है तो द वर्ल्ड इज़ बिकम स्मॉलर बट इट्स ऑल्सो बिकम मोर चैलेंजिंग. तो हर कंपटीशन भी हो गया है, मेरे पास भी हो जो तुम्हारे पास है, फिर कॉपी हो रहा है, कुछ चाइना से आ रहा है, कुछ. बिल्कुल. ऑल दीज कंट्रीज आर अमेजिंग, लेकिन उन्होंने अपने लिए किया है, उन्होंने आपके लिए नहीं किया. तो अगर पाकिस्तान में हम प्रोडक्शन में जाएं या पाकिस्तान में इम्प्रूव करें, और हो रहा है, दे आर लॉट ऑफ क्वालिटीज़. अब देखिए कॉटन, हमारा रॉ कॉटन कभी कभी एक्सपोर्ट भी हो रहा था बहुत, लेकिन शॉर्टफॉल हो जाती है मार्केट में, या प्राइसेस गवर्नमेंट बहुत बढ़ा देती है, टैक्सेस बहुत बढ़ा देती है. आई थिंक ये नहीं होना चाहिए. क्राफ्ट में और आर्ट में और इन चीज़ों में बल्कि लीवे देना चाहिए कि आप काम कर सको उसमें. बिल्कुल. फिल्म मेकिंग में, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में, सो दैट यू कैन प्रेजेंट समथिंग लाइक एजुकेशन. अब आप बात कर रही हैं, यू नो शी मेंशन टू मी कि ये लोगों को नहीं पता होता, सरफेस पे करते हैं. तो मीडिया का तो ये ना, क्योंकि कमर्शियल हो गया तो एवरीथिंग इज, ये कवर हुआ, ये शो ख़त्म नहीं हुई, कुछ और हो गया. बट आई एम क्वाइट हैप्पी टू टॉक टू यू, जो डिटेल आप पूछ रहे हो, क्योंकि किसी का भला हो जाएगा. एंड आई एंजॉय इट ऑल्सो. मतलब मेरे लिए तो ये एक वे ऑफ लाइफ है. बिल्कुल. हम कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अगले को पता है, लेकिन नहीं पता. ठीक है. बिल्कुल. सो अब आए, हमने देखा सब कुछ, लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें आपसे मिलके ही पता चली, बहुत सारी बातें पता चली. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया. और आई एम डिलाइटेड टू टॉक टू यू. और ज़्यादा तरक्की दे, हमको सेहत के साथ रखे ताकि आप ये सब काम करते हैं. थैंक यू सो मच. और आपको भी.